welcome all of you to this wonderful Monday session again. But let's jump into the topic right now. The topic is simplicity. तो simplicity पे हमने last दो sessions बात की है. Some people may have got some idea by now. I will take a quick recap so that if people have forgotten or you don't remember क्या हुआ था या क्योंकि काफी busy है अभी schedule सबका. So let's just do a 1 minute recap and then we will jump into the topic. Part 3, which will summarize everything. In the first session, we started with the simplicity. What is simplicity as a value? उसका क्या importance है? How should it be fared compared to other values that we tend to care for, like cost, like time, like freedom, like other things. Simplicity should be cared for enough as much as the cost for something. तो हम कॉस्ट को जितना महत्व देते हैं चीजें खरीदते वक्त या बिल्ड करते वक्त या किसी भी चीज में, तो उतना सिंप्लिसिटी को देना चाहिए, ऐसा हमने सीखा था. Then we understood why it is important. Because complex systems are difficult to build, to repair, to understand, and to teach, and to do everything with them. Complex systems waste time. Complex systems create a heavy load on your brain. Your cognition power, your brain power is wasted learning to decode complex systems. At the same time, if the system is simple, you could do away with the things in few minutes. तो जिस चीज को 2 मिनट लगना है उस चीज को 2 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता. कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में आपका बहुत सारा टाइम समझने में, डिकोड करने में चला जाता है. तो ये सब चीजें हमने फर्स्ट सेशंस में वैल्यूज देखे सिंप्लिसिटी के, क्यों इंपॉर्टेंट है सिंप्लिसिटी. देन सेकंड सेशन में we saw a lot of techniques of simplifying things. So there are lots of techniques that we studied in the last session, like shredding, slimming, cutting. हम चीजों को कट कर देते हैं, प्रोसेसेस में से फालतू रूल्स निकाल देते हैं, and so on. Then we learned a lot about other techniques like start afresh. We read about techniques like combining. We read about bulk and exceptions. We read about listening, historical review, clever approach, and a lot more. And also provocative amputation. A lot of techniques we visited last time. These are some of the techniques that will help you to simplify things. तो ये कोई ऐसे step by step rules नहीं है, but these are all the concepts that once you understand, you should be able to apply it in simplifying anything. वो एक प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, आपका कोड सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, आपका कोई स्क्रिप्ट हो सकता है, कोई हाई टेक मशीनरी भी हो सकता है. तो जब मशीनरीज बनाता है कोई, या कोई आर्टवर्क बनाता है, या कोई राइटर जब कोई आर्टिकल बनाता है या बुक बनाता है, तो उसमें भी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है. आर्टिस्ट वर्क विद सिंप्लिसिटी ऑल द टाइम. So it's an essential value not only for artists but for all of us. So today's session, the third session and the final one on simplicity, is going to simplify everything for you. It's going, we are all, and it's going to be very short and sweet and simple also. So we are just going to understand some essential rules of simplicity, जिसमें सारा समराइज भी हो जाएगा और आपको एक रिव्यू भी मिल जाएगा. Simplicity is based on the famous book Simplicity by Edward de Bono. He was the thought scientist. He who developed concepts like lateral thinking, concepts like Poe, which is provocation, and so many other concepts he has done, like Six Thinking Hats and various others. So let's jump into the topic now. So what is everyday simplicity? हम everyday simplicity से start कर रहे हैं यहाँ पे. कि एवरीडे सिंप्लिसिटी क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ऑल दीज आर वैल्यूज दैट टू बी कल्टिवेटेड एज योर हैबिट. तो देखो बहुत सारी चीजें हैं ना, हम पढ़ते हैं, रूल्स पकड़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं. अब कितनी चीजों का हम कितना याद रखेंगे ना. एवरीथिंग हैज स्टेप्स, एवरीथिंग हैज रूल्स. तो वही चीजें हमारी सेकंड नेचर बन जाती हैं, जो हम मास्टर बन जाते हैं करते करते. जैसे ग्राफिक्स पीपल आर मास्टर एट देयर टास्क, है ना. बेसिकली कोडर्स आर गुड एट देयर, मास्टर्स एट देयर कोड राइटिंग स्किल्स. तो उनको बार बार सिंटेक्स नहीं देखना पड़ता, उनको बार बार फॉर लूप कैसे लिखना है उनको गूगल नहीं करना पड़ता. क्यों? क्योंकि वो छप जाता है ब्रेन में. करते 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 वो नैक आ जाता है, हैबिट आ जाता है, याद हो जाता है, चीजें, नेसेसरी चीजें याद हो जाती है. तो जो चीजें हमारी सेकंड नेचर बन जाती है ना, उसको हमें बार बार दोहराना नहीं पड़ता, चेकलिस्ट लेके घूमना नहीं पड़ता. तो कुछ टेक्निक्स हैं टू बिकम बेटर थिंकर्स, टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, टू बिकम सिंप्लीफायर्स, simpers as Edward de Bono may call it, wants to call it simpers, simp it. Don't he even created a short word
invented a new word for simplicity, which is simping it. Simp it. Instead of simplify this process, he would say simp it. तो सिंपर्स या सिंप्लीफायर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसको एक हैबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था ये भी कि सिंप्लिसिटी विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। आपने कोई आर्टिकल लिखा है, सबमिट कर दिया, तो आपको पता है दैट इज ऑलमोस्ट रबिश। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एनीथिंग इज ऑलमोस्ट क्लोज टू रबिश। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द बुक और द पोस्टर और एनीथिंग एल्स और इवन द कोड इज रबिश। इट्स नॉट ऑप्टिमाइज्ड, इट्स नॉट क्लीन कोड एट ऑल। तो सिंपल बनाने के लिए आपको इटरेशंस देना पड़ता है। सिंपल बनाने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है, राइट? यू गो ऑन एंड ऑन, यू गो ऑन एंड ऑन, यू वर्क ऑन इट अगेन एंड अगेन अनलेस यू आर एबल टू सिंप्लीफाई इट क्विकली। तो एवरीडे सिंप्लिसिटी का क्या मतलब होता है? एवरीडे सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि हाउ आर यू गोइंग टू यूज दिस हैबिट और वैल्यू इन योर डे टू डे लाइफ। रोज में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स यहाँ पे सिंपल सी हैं, मैं अभी पढ़ता हूँ इनको, और दे विल लाइट बल्ब्स इन योर ब्रेन ऑटोमेटिकली बिकॉज क्वाइट सिंपल दे आर। और जो नहीं समझ में आएगा हम उस पर बात करेंगे, एंड देन वी विल सी सम रूल्स ऑफ सिंप्लिसिटी दैट इज गोइंग टू समराइज एवरीथिंग। वन थिंग एट अ टाइम, ये हमने बार बार सुना है, राइट? हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक ही चीज पे अटेंशन दे सकता है, या फिर जो हैबिचुअल टास्क है, वेरी सिंपल टास्क ऑन ऑन विच यू आर क्वाइट हैबिचुअल एट, वो करते करते आप दूसरा पैरेलल छोटा सा टास्क ले सकते हैं। जैसे हम चाय बना रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, विच इज इजी टू डू। लेकिन आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, कोई कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कोड लिख रहे हैं, देन यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन टू थिंग्स एट अ टाइम। यू नीड फुल फोकस, यू नीड कंप्लीट अटेंशन, राइट? तो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको फुल अटेंशन देना पड़ता है बिकॉज देर इज ओनली सो मच ऑफ अटेंशन स्पेस दैट यू हैव इन योर ब्रेन। रफली, टेक्निकली स्पीकिंग, 4 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। 4 डिजिट, 4 नंबर, 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में, अटेंशन स्पेस में एक टाइम पे रह सकते हैं। 5वां डालते हैं हम, एक निकल जाता है उसमें से साइड। रोल ओवर, रोल ओवर। तो वन थिंग एट अ टाइम का मतलब होता है कि आप एक चीज पे फोकस करो, तभी वो सिंपल होता है, तभी वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्सिफाई से आप हट पाएंगे। अगर हम डेलिबरेटली 2 चीजें कर रहे हैं, 10 चीजें कर रहे हैं, तो you will end up producing poor quality work. You will end up producing work that will require lots of more iterations. ठीक है, ये सिंपल है, इस पे हमने कई बार बात की भी है कि हाउ। तो जो डीप वर्क है, जो फोकस्ड वर्क है, वो हम कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए रखते हैं, जहाँ फुल अनडिवाइडेड अटेंशन आपको देना है। देन वर्बलाइज। वर्बलाइज का क्या मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं ना, तो ब्रेन में रजिस्टर होता है। कई चीजें ऐसी हैं कि आप बना देते हैं और सबमिट कर देते हैं बिना रीड किए, बिना उसके, तो कई बार वो कॉम्प्लेक्स होता है। when you read it, when you verbalize your theory, when you verbalize your formula or your article or your poem or anything else, तो वो रजिस्टर होता है ब्रेन में, अरे ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा है, अरे दिस इज नॉट रेजोनेटिंग विद मी। तो वर्बलाइज करने से भी चीजों को पता चलता है। तो राइटर्स कई बार प्रिंट करके भी पढ़ते हैं। प्रूफ रीडिंग कैसे होता है? प्रूफ रीडिंग प्रिंट करके होता है। कॉपी राइटिंग कैसे होता है? प्रिंट करके भी होता है। सिर्फ मैन्युअली, डिजिटली आप देख देख के आईज थक जाते हैं, तो बहुत सारे मिस्टेक्स प्रूफ रीडिंग में प्रिंट करने के बाद पकड़ में आते हैं। ऐसे ही वर्बलाइज करने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज पकड़ में आते हैं राइटिंग। देन अनबंडल, अनटैंगल। ये अंडरस्टूड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि चीजों को टैंगल मत करो, अनटैंगल करो। देन एनालाइज, ब्रेक इनटू पार्ट्स। वी ऑल नो दिस। प्रॉब्लम शुड बी डिवाइडेड इनटू, इफ द प्रॉब्लम सीम्स लाइक अ माउंटेन, यू ब्रेक इट डाउन इनटू पीसेस ऑफ मस्टर्ड। छोटे छोटे टुकड़े बनाओ उसके, छोटे छोटे पत्थर बनाओ और फिर तोड़ो उसको, राइट? देन टेक स्मॉल स्टेप्स। डोंट कंफ्यूज इट विद ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स। टेक स्मॉल स्टेप्स का मतलब होता है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर निरंतरता से, रेगुलरिटी से, परसिवेरेंस से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 100 बुक्स पढ़नी है तो आपको 5 बुक्स रोज पढ़नी पड़ेगी। 200 पेज की बुक लिखनी है तो आपको 100 वर्ड्स रोज लिखने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो डेली स्मॉल स्टेप्स। यूज कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स पे इट इज ऑल्सो अ टेक्निक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। Concepting is finding the abstraction in anything. You fly in the air, you lift yourself up in the air and see something from top. तो आप उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू देखते हैं, बर्ड आई व्यू देखते हैं, एसेंशियल व्यू देखते हैं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट, द एसेंशियल इज, you get fast food quickly without cooking, without basically cooking on your own and without wasting too much time waiting in the restaurant for your order to be delivered. Fast food. So everything has a concept. You can ask a question, what is the concept? What is the main idea here in this operation?
Then thinking in stages, working backwards, do things very slowly. This is quite important. Let's take a pause here. तो जब हम फास्ट करते हैं ना चीजें, तो दिस इज क्वाइट टिपिकल दैट वी डोंट अंडरस्टैंड एंड थिंग्स गेट एंटेंगल. हमें पता है, आप बुक पढ़ रहे हैं कोई और पढ़ते जा रहे हैं, अचानक ध्यान कहीं भटक जाता है, कहीं पे माइंड में दूसरे थॉट्स आ गए और आपका पेज खत्म हो गया. ठीक है, आईज अपनी स्पीड से पढ़ रहे, फिर आपको याद आता है अरे लास्ट के 3 पैराग्राफ में तो कुछ ध्यान कहीं और ही था, तो आपको वापस जाना पड़ता है, वापस पढ़ना पड़ता है. तो सिंप्लिसिटी के लिए इट इज रिकमेंडेड यू डू थिंग्स वेरी स्लोली, स्पेशली इफ दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. You do them, take very small step at a time, so that you get also a satisfaction of achieving something, while at the same time you don't get entangled and move too fast. ठीक है, तो धीरे धीरे करना है, एक एक स्टेप लेना है. देयर इज नो नीड टू बी परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली परफेक्शनिस्ट के लिए. तो परफेक्शनिस्ट को क्या लगता है कि परफेक्ट ही होना चाहिए, कोई भी चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परफेक्ट होना चाहिए, या परफेक्ट मोमेंट आएगा तो ही मैं स्टार्ट करूँ, परफेक्ट किसी दिन मुहूर्त होगा तो ही मैं इसको नारियल फोड़ के काम चालू करूंगा. तो देर इज नो परफेक्ट मोमेंट एंड नथिंग एवर अचीव्स परफेक्शन. तो ये हमें याद रखना चाहिए. हमें 80-20 रूल फॉलो करना है कि आप 20% टाइम में 80% पहले खत्म करो काम को, या ऐसी 20% चीजों पे टाइम दो जो 80% क्रूशियल रिजल्ट आएंगे. 80-20 रूल इज अनदर बिग टॉपिक, हमने बात की है. we'll talk more on this. We will keep revisiting it on different aspects, but the idea is in the field of simplicity there is no definition of perfection. You have to take it simple, you have to take it slow, then clarify most importantly what is going on. तो बीच बीच में रुकना है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पे, कॉम्प्लेक्स चीज पे आप काम कर रहे हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं, कुछ हफ्ते काम कर रहे हैं, अपने टीममेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्या होता है कि आप एक गोल से शुरू करते हैं, एक हफ्ता उस पर काम किया, आफ्टर द वीक द गोल इज लॉस्ट और आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देयर आर so many projects which are so long, which take years to complete, months to complete. उसमें गोल और उसका जो वाई था, स्टार्ट विद वाई, पर्पस जिसके लिए शुरू किया था, वो खो जाता है. क्लैरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो समबडी विल शुड रीइटरेट द पर्पस. बीच बीच में क्लैरिफाई करना है, बीच बीच में याद करना है क्यों शुरू किया था, क्लैरिटी देने के लिए खुद को. क्लैरिफाई, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. Okay, so these are just, I'm not going into very much detail on into each of these. These are some everyday simplicity techniques जो आप daily basis पे, these are some tips to make your day more simple. These are some tips to give you a simple lifestyle. Now here is a question for you. Some food for thought. Is the ultimate aim of simplicity to design a simple life? How simple is simple life? तो ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम सब के सोचने के लिए कि सिंपलिसिटी का एम क्या है. क्या हम सिंपल लाइफ बना रहे हैं, ये एम है? और सिंपल लाइफ से क्या होगा, और सिंपल लाइफ सिंपल होगा क्या कि फिर दूसरी कॉम्प्लेक्स चीजें करने लगोगे, क्योंकि सिंपल हो गया तो फिर बाकी क्या करोगे ना. लोग क्या करते हैं, पहले टाइम बचाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं. मैं दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ. जो लोग प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं ना, तो जो समझो 8 घंटे में काम खत्म कर रहे थे, काम बढ़ गया, अभी 16 घंटे का काम है, देन समवन लर्न्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो वो प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट बन जाता है. प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट से फिर वो 16 घंटे का काम 8 घंटे पे आ जाता है, फिर वो 8 घंटे का 4 घंटे पे आ जाता है. तो 4 घंटे का काम खत्म करके बाकी 8 घंटे क्या करेंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे. फिर इंस्टाग्राम देखेंगे. सो द आइडिया इज हाउ सिंपल इज सिंपल लाइफ करके फिर क्या करोगे. ठीक है, दिस इज जस्ट अ फूड फॉर थॉट. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट, कैन थिंक अबाउट. Now let's get into the rules of simplicity. There are 10 very simple rules which is going to simplify everything for you. इससे आपका एक समरी भी हो जाएगा और एक हाई लेवल वैल्यूज आपको समझ में आ जाएंगे. व्हाट इज द रूल 1 ऑफ सिंप्लिसिटी? तो जो लोग इस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, जिनको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कॉन्सेप्ट, क्या अरे सिंप्लिसिटी ये क्या है, ये तो बहुत कुछ अलग ही बता रहे हैं, तो कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लाइफ सिंपल होना चाहिए. हर डायमेंशन में इसका यूज है, हर लाइफ के फील्ड में, मैथ्स में, साइंस में, अप्लाइड साइंस में, कंप्यूटर्स में, डेली लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, एवरी प्लेस सिंप्लिसिटी हैज अ वैल्यू. बट इसको ड्यू इंपॉर्टेंस मिला नहीं है. मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था ना, इट इज एक्चुअली अ फ्यूचर टॉपिक. फ्यूचर में लोग इस पे काम, ओनली इन फ्यूचर पीपल विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सिंपिंग डिपार्टमेंट शुरू होंगे आगे फ्यूचर में कंपनीज में, सिंप्लीफाइंग डिपार्टमेंट्स. अभी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है ना, हम सुनते नहीं है कि हम R&D सुनते हैं ज्यादा से ज्यादा. हमने बड़ा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, नए से नया टेक, हाई टेक डिपार्टमेंट्स जो हैं गूगल और उबर और फेसबुक में जो होते हैं, हमने सुना है कि हाई टेक
डिपार्टमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज पे, नए नए ब्रेक थ्रूज करते हैं, बट सिंप्लीफाइंग डिपार्टमेंट हमने कहीं सुना नहीं है। तो फ्यूचर में ये भी क्रिएट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज थिंग्स गेट ऑन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विद टाइम, दे डोंट बिकम सिंपल, ऑन द कॉन्ट्रेरी दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विद टाइम। तो दिस इज द लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स विद टाइम, ये हमने देखा था। तो अभी ये 10 रूल्स हम देखते हैं सिंपल सिंपल, जो हमें पूरा उसका एक जर्नी नेविगेट हो जाएगा। तो रूल 1 क्या कहता है, यू नीड टू पुट अ वेरी वेरी हाई वैल्यू ऑन सिंप्लिसिटी। तो यहां से हमने स्टार्ट भी किया था कि अगर आप सिंप्लिसिटी को वैल्यू नहीं देते, एज इंपॉर्टेंस एज योर फ्रीडम, एज इंपॉर्टेंट एज योर कॉस्ट, एज इंपॉर्टेंट एज योर टाइम, it will not happen automatically, and your life will not become simple, your day will not become simple, you will not become famous, or you will not be able to simplify things. By famous I mean to be able to simplify things and make your day simple and easy. So you need to put a very very high value, आपको उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, आपको उसके बारे में डेलिबरेटली सोचना पड़ेगा। आप कुछ चीजें बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टार्ट विद द डिजाइन ऑफ सिंप्लिसिटी इन माइंड। जैसे हमने देखा था कि आपको अगर माइंड में ये पिक्चर है कि मुझे इसको सिंपल ही डिजाइन करना है, ये 2000 लोग यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला और दिस मशीन और वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट और यू आर क्रिएटिंग और दिस समरी कार्ड और वॉट एवर, तो मुझे इसको सिंपल ही बनाना है। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा तो 2000 लोगों का रोज टाइम वेस्ट होगा इस पे, एंड दैट इज आई डोंट नो हाउ मेनी मिलियन आवर्स वेस्टेड इवन इन 1 ईयर और 2 ईयर्स। तो जो लोग ऐसा सोचेंगे वही सिंपल चीजें बनाते हैं, otherwise you will just end up creating complex things. Rule 1 is you should put a very high value. Second rule, let's go into second, you must be determined to seek simplicity. तो ये रूल हमें क्या बता रहा है कि आपको सीख करना है डेफिनेटली, अपने आप नहीं हो जाएगा, अपने आप मिल नहीं जाएगा, वो कोई सिंप्लिसिटी कोई प्लेट में रख के नहीं देगा आपको, है ना? या सिंप्लिसिटी मैनेजर आके नहीं बोलेगा योर गोल योर केआरए फॉर दिस क्वार्टर इज सिंप्लीफाइंग थिंग्स, कोई भी बोलेगा नहीं, क्योंकि ओनली इन फ्यूचर दिस इज पॉसिबल टू हैपन when manager and bosses and companies and all the productive or let's say knowledge workers will put a high value on simplicity. अभी नहीं हो रहा है अभी तक ये, but people have started thinking in this direction. तो रूल नंबर 2 इज यू मस्ट बी डिटरमिन योरसेल्फ, आपको एक डिटर्मिनेशन लेना पड़ेगा कि मेरे को सिंप्लिसिटी सीख करना ही है, चाहे 10 इटरेशंस लगे चाहे 5 इटरेशंस लगे, बिकॉज इफ यू सीक इट यू विल फाइंड। रूल नंबर 3, you need to understand the matter very very well. This is like a quote from Einstein, if you understand something really well, then you can explain it in simple terms. तो देखो हमारे साथ क्या होता है, हम कब फंबल करते हैं, हम कब नर्वस होते हैं, हम कब कंफ्यूज होते हैं, मुझे बताओ। जब अननोन होती हैं चीजें, है ना? हमें डर लगता है जब अननोन होता है, फ्यूचर का डर लगता है, जो भी अननोन चीजें हैं उनका हमको डर लगता है, कल क्या होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि अननोन है डर लगता है। तो जो चीजें कॉम्प्लेक्स है, जो हमने समझी नहीं है ना, उसका भी हमको डर लगता है। वो चीजें हम एक्सप्लेन करना तो दूर की, सिंप्लीफाइंग करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते ढंग से, क्योंकि समझा ही नहीं है आपने, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो सिंप्लीफाई करने के लिए समझना बहुत जरूरी है, और समझने के सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो अगर आप कोई चीज समझ गए, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया और फिर आप किसी को सिखाने जा रहे हैं वही प्रॉब्लम, तो मुझे बताओ ना, वो सिर्फ आपने जो मेथड से सॉल्व किया, ज्यादा से ज्यादा आप उतना सिखा सकते हो, करेक्ट? क्योंकि आपने एक बार सॉल्व कर लिया, वो अचीव कर लिया, समझो 1 घंटा आपने स्पेंड किया ऑन सम मैथ्स प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम और सम लेट्स से पजल, तो वो पजल को सॉल्व करने का उतना ही तरीका है क्या वर्ल्ड में? नो, द वर्ल्ड डजंट एंड देयर, राइट? अब जस्ट इमेजिन अ मैथ्स टीचर जिसने उस प्रॉब्लम को शायद 1000 बार सॉल्व किया होगा, जो 10वीं को या 12वीं को और एनी अदर ग्रेड, let's say the teacher is teaching for last 10 years or 20 years the same class, हो सकता है उसने 500 बार सॉल्व किया हो वो सेम प्रॉब्लम, तो वो वुड ही बी एबल टू एक्सप्लेन इट सिंपली? यस ऑफ कोर्स, कंपेयर टू यू जिसने एक बार सॉल्व किया है, वो टीचर आराम से उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझा सकता है, या 10 अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा सकता है, या फिर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस में से काफी सिंपलेस्ट इजिएस्ट वे वो बता सकता है टीचर। क्यों? बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द मैटर वेरी वेल कंपेयर टू यू। उनका वो 100 बार पढ़ के हुआ है बुक मैथ्स का, हमारा एक बार भी नहीं होता है पढ़ के एग्जाम के लिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैटर वेरी वेरी वेल, ओनली देन यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स। तो ऐसा मत समझना कि कोई चीज में आपको अगर इतना एक्सपर्ट बनना है या सिंपिंग एक्सपर्ट बनना है, तो आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। तो एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको बार बार उसको उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी, उसकी डेप्थ में उसको जाना पड़ेगा, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम एक्सपर्ट।
What is rule number 4? You need to design alternatives and possibilities. वेरी वेरी नाइस. तो ये देखो, ये क्रिएटिव थिंकिंग का पार्ट भी है. ये मैंने सारे क्रिएटिव थिंकिंग सेशंस में भी, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ क्रिएटिव थिंकर. अगर आप सब लोग एक प्रोडक्टिव, एक क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं ना, तो ये हैबिट, कम से कम ये हैबिट डेवलप कर लो अपने में. इतना भी आपने टेक अवे ले लिया ना, तो इधर फ्रॉम दिस सेशन और फ्रॉम एनी क्रिएटिव थिंकिंग सेशन यू वुड हैव लर्न अ लॉट. क्या है ये, इसका मतलब कि किसी भी चीज में ना एक सॉल्यूशन पे रुक नहीं जाना है. जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, जस्ट एग्जांपल ऑफ अ मैथ्स प्रॉब्लम, तो 10 तरीके से नहीं, वो एक्चुअली 200 500 1000 तरीके से सॉल्व हो सकती है चीजें. एंड नॉट जस्ट अ मैथ्स प्रॉब्लम, आई मीन लिटरली एवरीथिंग. हम कोड बनाते हैं ना, कोई एपीआई बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, आर्ट बनाते हैं. आर्ट का तो पता है, आर्टिस्ट विल एग्री राइट. जिस तरह का आर्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह का पोस्टर बनाते हैं, वो एक ही तरीका है क्या? No, there are infinite more combinations. There are so many colors, there are so many ideas, there are so many shapes, concepts, theories, right? कितने तरीके से. तो आर्ट तो लिमिटलेस है, ऐसी और भी चीजें लिमिटलेस है. मैथ्स भी लिमिटेड नहीं है, साइंस भी लिमिटेड नहीं है, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड. So there are thousand and millions and billions of combinations, solutions possible to a single problem. लेकिन हमारा माइंडसेट क्या हो गया है आज? एक सॉल्यूशन मिला नहीं कि हम दुकान बंद कर देते हैं, एक सॉल्यूशन मिला हम किताब बंद करके चले जाते हैं, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना भी आपने सीख लिया ना इस सेशन से, कि लुक फॉर एटलीस्ट 5 सॉल्यूशंस, लुक फॉर एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस. ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि एक पूरा दिन खराब करो एक ही प्रॉब्लम में सॉल्व होने के बाद भी 10 सॉल्यूशन 20 सॉल्यूशन ढूंढो. ठीक है, 10 मत ढूंढो, 2 तो ढूंढो, कम से कम 3 तो ढूंढो. तो जब आप कोई सॉल्यूशन सॉल्व करके लेके जाते हो अपने मैनेजर के पास, तो कम से कम बताओ ये 3 तरीके से मैंने किया है, 3 तरीके से ये हो सकता है, बेस्ट तरीका ये है मुझे लगता है, आप बताओ. एंड सो, so this will itself turn you into a creative thinker. This will also, this, even just this point has enough power to turn you into a very productive person and will develop your thinking power by leaps and bounds. तो देखो, लिमिट नहीं करना है ब्रेन को कभी भी. ब्रेन आपने 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया और एक भी सॉल्यूशन मिला नहीं है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. हमको लगता है अरे होने दो होने दो, और पता चला 4-5 घंटे बैठे, एक सॉल्यूशन मिल गया, हम बंद करके भाग जाते हैं, चलो यूरेका आइसक्रीम खाते हैं. तो दैट इज नॉट इनफ. ठीक है, ब्रेक ले लो चलेगा, लेकिन कम बैक टू इट. बोलो कि हाँ यही एक तरीका बेस्ट हो सकता है. क्या हो सकता है? सबसे वर्स्ट तरीका ढूंढा हो आपने उसको सॉल्व करने का, राइट? कई बार ऐसा होता है ना, हम पहले जो फर्स्ट सॉल्यूशन मिलता है दैट इज टिपिकली द वर्स्ट, टिपिकली द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन मे बी. सी, इट कुड बी वन ऑफ द इजी वंस आल्सो. आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आई एम जस्ट पुशिंग ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मोर ऑल्टरनेटिव्स. always ask this question, what are the other ways of achieving this? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हमें कि और किस तरीकों से ये चीज हो सकती है. क्या ये एक ही तरीका है? आपने इतना भी पूछ लिया तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सीख जाएंगे. आप इतना भी आपने सीख लिया तो लेटरल थिंकिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीख जाएंगे. जस्ट आस्क व्हाट आर द अदर वेज ऑफ डूइंग दिस, व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज. डोंट लिमिट योरसेल्फ बाय one solution, never ever. And this is not only for artists, this is for engineers, artists, writers, everyone, even leaders managers तो करते ही हैं. So this is also a hallmark of a good leader, hallmark of a good thinker. You need to design alternatives. You need to not limit yourself at a single answer or at a single possibility of doing something. ठीक है. Rule number 5. You need to challenge and discard existing elements. ये बहुत देखो अच्छी सी चीज है ये. तो what Sushant said is right, but understand this: challenge and discard go together. तो आप चीजों को डिस्कार्ड तभी कर पाओगे जब आप उनको चैलेंज करो, है ना? तो छोटे बच्चे देखो हर चीज को चैलेंज करते हैं. आप छोटे बच्चों को बोलो कि ब्रश करो, तो वो बोलेगा क्यों करना है. आप उसको बोलो कि ये ऐसे ऐसे पेस्ट लो, ऐसे ऐसे ब्रश को धो, फिर उस पर ब्रश लगाओ, फिर उसको मुंह में डालो, तो वो बोलेगा ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों नहीं करना, लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं करना, राइट हैंड से क्यों करना है, ये पेस्ट ही क्यों करना है, वो पेस्ट क्यों नहीं करना. तो वो हर चीज पे जो वाई पूछता है, दैट इज एक्चुअली चैलेंजिंग योर प्रिंसिपल्स, चैलेंजिंग योर डेली प्रोसेस. लेकिन हम ऐसे नहीं सोचते ना, बच्चे के जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं फिर वो अपना क्रिएटिविटी. तो यू नीड टू चैलेंज एंड डिस्कार्ड एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स. तो हमारे जो भी डेली बेसिस पे लाइफ है, जो भी प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, वर्क में फॉलो करते हैं, एज राइटली सेड बाय सुशांत, तो जो भी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं उसको बीच बीच में चैलेंज करो कि मैं ये 10 स्टेप्स लेता हूँ, पहले ये लेता हूँ फाइल, फिर यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर वो करता हूँ. 10 स्टेप्स में मेरा काम हो जाता है, 1 घंटा लगता है. बट उसको कभी चैलेंज करके देखो, फ्यूचर में दोबारा चैलेंज करो कि अरे इससे इजी तरीके से हो सकता है क्या, अरे मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या, इसको मैं ऑनलाइन ही कर सकता हूँ क्या. तो ऐसे चैलेंज करने की वजह से ही इतनी सारी चीजें क्रिएट हुई है. अगर नो वन चैलेंज दिस, तो आज हमें हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था.
अगर एडिसन ने चैलेंज नहीं किया रहता था अपने आप को, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या, कंप्यूटर्स कुछ भी नहीं रहता था हमारे पास। अब हम लोग सब अंधेरे में बैठे रहते थे जंगल। तो देर आर पीपल, देर आर हर्क्यूलियस पीपल, देर आर पावरफुल पीपल हु चैलेंज थिंग्स। तो नई चीजें क्रिएट हुई, इन्वेंशंस हुए, राइट। तो हमें भी उस लीग का थिंकर बनना है। हम सबके पास वो पोटेंशियल है, हम सिर्फ सोचते नहीं है। वी डोंट गिव इनफ पुश टू अवर ब्रेन्स। तो देखो, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक को जाके चैलेंज करो या हर स्टेप को चैलेंज करो टाइम वेस्ट करते हुए। फास्ट करो चीजों को, सिंप्लीफाई करो, लेकिन बीच बीच में चैलेंज करो। आप एक साल से एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो कम से कम एक दो बार साल में, दो तीन बार तो बैठ के पूछो कि यही प्रोसेस बेस्ट है क्या, इससे फास्ट हो सकता है क्या। तो ऐसा हो सकता है कि आपने चैलेंज करने के बाद कुछ स्टेप्स आप डिस्कार्ड कर पाओगे उसमें से। अगर चैलेंज ही नहीं करोगे, 7 स्टेप प्रोसेस है तो 7 स्टेप ही रहेगा आपका। वो उतने घंटे लगते थे तो उतने घंटे ही लगेंगे। हो सकता है कि एक साल बाद, क्या अभी टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है, एवरी मंथ देयर आर न्यू सॉल्यूशंस, एवरी डे समथिंग इज बीइंग इन्वेंटेड, राइट। तो चैलेंज करना जरूरी है। यू डोंट जस्ट sit tight with your hands closed. No, you should challenge things over and over repeatedly. Rule number 6, you need to be prepared to start all over again. ये सुन के डर लगेगा किसी को। देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार कोड लिख रहा था इन वन ऑफ माय प्रीवियस कंपनी एंड वन ऑफ माय प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। तो एक मुझे टास्क दिया गया था, मुझे एक चीज ऑटोमेट करना था, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट। इट वाज अबाउट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट लेट्स से अ वेरी ह्यूज वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेट्स से अबाउट, आई डोंट नो, 800 पेज डॉक्यूमेंट, 800 पेजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। उसको मैंने पूरा ऑटोमेट किया था बाय कोड। तो जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन और वो पूरा डॉक्यूमेंट बन जाता था। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ, आई थिंक इट वाज वीबी स्क्रिप्टिंग और मैक्रोज, आई रिमेंबर वीबीए। तो वीबीए में कोडिंग करके 800 पेज का डॉक्यूमेंट ऑटोमेट किया था बाय 3 days ऑफ एफर्ट, 3 days एंड नाइट्स। तो 3 दिन ऑफिस में बैठ के मैंने वो ऑटोमेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वो कोड डिलीट हो गया, पूरा का पूरा डिलीट हो गया। और मैंने कुछ भी उसका ना डिजाइन बनाया था, ना फ्लो डायग्राम बनाया था, ना नोट्स बनाया था। आई वाज नॉट दिस प्रोडक्टिव और दिस थॉटफुल बैक देन, राइट। आई वाज जस्ट अ सिंपल प्रोग्राम। तो कुछ भी नहीं था, मेरे दिमाग में था सब कुछ। और उतना सारा कोड, आई डोंट नो हाउ मेनी लाइंस ऑफ कोड, आई थिंक 200 300 400 लाइंस ऑफ कोड। तो वो पूरा ट्रैश हो गया 3 दिन 4 दिन के बाद। तो जब वो बंदे ने आके मांगा मुझसे डिलीवरी, तो आई वाज सो शॉक्ड। एंड अनफॉर्चुनेटली द फाइल हैड गॉट डिलीटेड, और वो रिसाइकल बिन में भी नहीं था, वो कहीं था ही नहीं। इट जस्ट गॉट डिलीटेड कंप्लीटली। So that was the shock of my life, and I understood the importance of taking backups. I understood the importance of taking diagrams and photos and taking notes and everything. उसके बाद मुझे वो पूरा दोबारा लिखना पड़ा। बट इमेजिन कितना टाइम लगा मुझे उसको दोबारा लिखने में, एक दिन, इवन हाफ अ डे आई। तो जो 3 साढ़े 3 4 दिन का काम था ना, वो आधे दिन में कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम इजी गया वो, नेक्स्ट टाइम गलतियां भी ठीक हो गई थोड़ी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऑप्टिमाइज भी हो गया अपने आप को कोड करते करते। तो देखो, ब्रेन इज ऑलरेडी अ वेरी पावरफुल मशीन, ठीक है, बट द आइडिया इज यू नीड टू बी प्रिपेयर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो इससे हेजिटेट मत हो जाना। कुछ लोग तो अभी गिव अप ही कर देते हैं। ऐसा कुछ हो गया किसी के साथ तो लोग गिव अप ही कर देंगे, नहीं हमसे नहीं होगा, अभी खत्म हो गया, लाइफ ही खत्म हो गई अभी। ये चीज, इतनी मेहनत का कुछ खो गया, अभी खत्म हो गया। तो ऐसा मत सोचो। देखो, सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हो जाते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, years and decades and thousands of years of complexity, पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स है कि हजारों हजारों साल की उसमें कॉम्प्लेक्सिटी। तो कई चीजें ऐसी है ना, वो पूरी की पूरी ट्रैश करके दोबारा शुरू करनी पड़ेंगी। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू अबाउट दीज एग्जांपल्स टू गो एंड सिंप्लीफाई गवर्नमेंट सिस्टम्स, बट यू कैन अप्लाई दिस एट अ सिंपल। तो हमारी लाइफ में भी अगर कुछ खो जाता है, कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स है, तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा उसमें से, कोई भी रूल सिंप्लिसिटी का कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं होगा। देन व्हाट यू विल डू? स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ सिंथेसिस। तो ये रूल भी हमें नहीं बताता है कि आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए इस चीज के लिए, है ना। ऐसे नहीं कि इतने डिप्रेस हो गए कि अरे अब कौन करेगा, ये है वो है। तो ऐसा मत सोचो कि पहले 10 साल लगे थे उसको करने में, तो अभी भी 10 साल लगेंगे। तो पहले 4 दिन कोड लगे थे, तो मुझे भी ऐसा ही लगा पहले कि अब शायद 6 दिन लगेंगे, क्योंकि नोट्स भी नहीं है। ये एक्चुअली उल्टा हुआ, 1/3 टाइम लगा मुझे, विदाउट एनी नोट्स, विदाउट एनी हेल्प। एक दिन में हो गया वो, क्योंकि ब्रेन में तो था ही। तो जब मैं लिखता गया दोबारा कोड, वो तो मुझे याद आता गया, और ऑप्टिमाइज भी कर लिया उसको साथ साथ, थोड़े थोड़े लूप्स ऑप्टिमाइज हो गए, कोड भी छोटा हो गया। और वो बंदा भी हैरान हो गया, अरे तुमने कैसे कर लिया एक दिन। तो इट वाज नो मैजिक फॉर मी, बट इट हैपेंड। व्हाई? बिकॉज वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट अगेन। अगर उसको लेमेंट करते रहोगे तो वो नहीं होगा। द आइडिया इज यू शुड बी प्रिपेयर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन इन सम केसेस। देन यू नीड टू यूज कॉन्सेप्ट्स। रूल नंबर 7, कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट इज द ब्रॉड आइडिया बिहाइंड समथिंग।
जैसे मैंने बताया था कि आपको घर में आई वॉन्ट टू क्लीन माई हाउस, तो क्लीन माई हाउस इज अ कॉन्सेप्ट, उस पर बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। अब क्लीनिंग में फिर देन व्हाट इज द स्पेसिफिक आइडिया कि आपको झाड़ू ये करना है, ठीक है, पेंटिंग करवाना है, रूम में जो क्लटर है वो निकालना है ना, फर्नीचर हटाना है, नया फर्नीचर लाना है, जमीन पे गंदगी है वो साफ करना है ना। तो क्लीनिंग के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। स्पेसिफिक आइडिया डिफरेंट होगा। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट आप बोलते हैं, फिर आपको घर वाले बोलते हैं समथिंग नाम की चीज नहीं है, क्या खाना है वो बताओ, चाय चाहिए, खाना चाहिए, टोस्ट चाहिए, पिज्जा चाहिए, राइस चाहिए। तो टोस्ट, पिज्जा, राइस ये क्या है? दीज आर स्पेसिफिक आइडियाज दैट विल सैशिएट योर हंगर, जिससे आपकी भूख मिट जाएगी। लेकिन आप बोलेंगे समथिंग टू ईट तो किसी को कुछ समझता है, तो समथिंग टू ईट इज अ कॉन्सेप्ट, फास्ट फूड बिजनेस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे दिस इज अनदर हॉलमार्क ऑफ अ क्रिएटिव थिंकर। जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिव थिंकर्स आपको बनना है, तो आपको ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हमेशा रुकना है, पॉज लेना है, सोचना है कि इसके और क्या तरीके हो सकते हैं। नेवर एवर बिकम हैप्पी विद वन सॉल्यूशन, ट्राई टू थिंक ऑफ द अदर सॉल्यूशन। नहीं करो इंप्लीमेंट तो भी चलेगा, लेकिन सोचो तो सही कि क्या और पॉसिबल हो सकते हैं, तो तीन तरीके और सोचो। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स ब्रॉड टू डिटेल आइडिया, देन गोइंग बैक फ्रॉम डिटेल टू ब्रॉड, ब्रॉड टू डिटेल। तो ये जो जंप होता है ना, ब्रॉड से डिटेल पे, डिटेल आइडिया से फिर वापस कॉन्सेप्ट पे जो जंप करना है, इट्स लाइक स्पेसिफिक रोड से आप राउंड अबाउट पे जंप करते हैं। राउंड अबाउट जो होता है हमारा रोड पे जंक्शन होता है, या फोर वे जो क्रॉसिंग होता है रोड पे, सो दैट इज लाइक अ कॉन्सेप्ट। तो अगर आप किसी और रास्ते पे निकल लिए और किसी ने बोला अरे अरे पीछे जाके अभी आपको वहां से राइट टर्न लेना पड़ेगा, तो वो पूरा पीछे आके जंक्शन से फिर आप राइट लेते हैं, राइट। तो दैट जंक्शन इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग। तो ब्रेन में भी ऐसा ही है, सेम। ब्रेन में भी रास्ते होते हैं, ब्रेन में भी जंक्शंस होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, they will take you back to the junction, and then you will find 100 more ideas, specific ideas to execute that concept। अगर आप आइडिया में ही अटके रहोगे कि नहीं मुझे यही चाहिए एग्जैक्टली स्पेसिफिक, तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल पाएंगे उसके। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम जैम हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो you need to understand concepts and you need to be able to use them to become a creative thinker, not only to become a simper or simplifier, you become a creative thinker also, you need the power of कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को वापस से डिस्टिल करना आना चाहिए आइडिया में। ठीक है, कि ये करना है कि किसी तरह से सेल्स बढ़ाना है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, वी नीड टू इंक्रीज सेल्स टू 10x। हमारा ये कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो किसी तरह बढ़ाना है, ये अपने आप में तो आइडिया नहीं है, राइट। दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इसको फिर करने के आइडियाज होंगे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करो, है ना, वर्ड ऑफ माउथ करो एंड सो ऑन। देन कॉन्सेप्ट इज पुट इनटू स्पेसिफिक आइडियाज। रूल नंबर 8, यू मे नीड टू ब्रेक थिंग्स डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट। तो ये तो गोज विदाउट सेइंग, ये मैंने पहले भी बताया, एवरीडे सिंप्लिसिटी में भी हमने देखा कि ब्रेक डाउन करो, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करो। आपको कोई बोलता है कि मेरे को ये करो, ये कोड लिखो, डिप्लॉय करो, इसका रिपोर्ट निकालो, केपीआई बनाओ और मुझे मंडे तक रिपोर्ट भेजो। आपको किसी ने बड़ा टास्क दे दिया कुछ, तो हम घबरा जाते हैं ना। कई बार ऐसा हो जाता है, अरे ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। तो देखो ब्रेक डाउन करो उसको, सामने वाला आपको जो गोल देता है उसको ब्रेक डाउन करो। अगर आपको बड़ा गोल लगता है, उसको छोटे छोटे पीस में बताओ। एक पार्ट तो करो उसका कि चलो पहले कोड लिखने से शुरू करना है, तो कोड लिखने के लिए भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिखना है, उसका फ्लो डायग्राम बनाओ पहले। वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कोड का, चलो पढ़ते हैं उसके बारे में, कोई आर्टिकल देखते हैं, यहां से शुरू करो। तो देर आर ऑलवेज ऑलवेज यू कैन सिंप्लीफाई थिंग्स, यू कैन ब्रेक थिंग्स डाउन। तो ये बहुत एसेंशियल सिंपल रूल है, हम लाइफ में यूज करते ही हैं। कुछ लोग, मैक्सिमम लोग ये यूज करते हैं। तो ये भी ध्यान में हमें रखना है कि आप चीजों को ब्रेक करो। कभी भी आपको अगर बड़ा गोल एक साथ नहीं समझ में आता है तो ब्रेक करो उसको, छोटे छोटे पीसेस बनाओ, उसके छोटे छोटे पीस करके अचीव करो। क्योंकि एक पीस अचीव होने के बाद यू विल फाइंड द सेकेंड पीस बिकमिंग more easy, and you will understand to see more, you will get more solutions to solve. Rule number 9, you need to be prepared to trade off other values for simplicity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इट कुड बी अ ट्रेड ऑफ। ठीक है, ट्रेड ऑफ का मतलब हाँ छोड़ भी देना होता है, और ट्रेड ऑफ का मतलब आपको कुछ और एक्सचेंज कर लिया आपने, है ना। जैसे समझो कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपसे किसी ने बोला, मैनेजर आपको बोलता है ये प्रोजेक्ट एक हफ्ते में खत्म करके दो।
ठीक है, तो आप उसको बताओगे कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन सिंपल नहीं होगा। तो सिंपल करना है तो 2 हफ्ते लगेंगे, ये ज्यादा कॉस्ट लगेगा। तो कई बार क्या होता है, सिंप्लिसिटी लाने के लिए कुछ और वैल्यूज को हटाना पड़ेगा। जैसे मनी ज्यादा इन्वेस्ट करने की बात आ गई, चलो ज्यादा मार्केट करेंगे, ज्यादा डाउनलोड्स आ जाएंगे, तो ये एक जैसे हम बात कर रहे थे, बट जरूरी नहीं है सिंपल हो जाएगा उससे प्रोसेस। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू ट्रेड ऑफ अदर वैल्यूज। किसी का कुछ वैल्यूज ट्रेड ऑफ हो जाएंगे। ट्रेड ऑफ मतलब कुछ वैल्यूज आपको दान करने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज छोड़ देने पड़ेंगे। यू विल लीव सम ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, एंड देन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेक्रीफाइस यू विल गेन सिंप्लिसिटी। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी, मतलब टर्निंग पॉइंट्स होंगे आपके वर्क में, आपके प्रोजेक्ट्स में, जहां पे आपको सिंप्लिसिटी लाने के लिए कुछ और छोड़ना पड़ेगा। किसी में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, किसी में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, किसी में गाइडेंस ज्यादा लगेगा, किसी का सीनियर का, किसी में आपको ज्यादा दिन काम करना पड़ेगा उसमें। देखो हम क्यों क्यों छोड़ देते हैं सिंप्लिसिटी, मुझे बताओ, क्यों हम वैल्यू नहीं करते हैं इसको? 90% यही रीजन होता है कि वी डोंट वांट टू पुट मोर टाइम, है ना? एंड टाइम इज वन क्रूशियल एसेट एवरीवन हैज लिमिटेड, राइट? हैज ओनली लिमिटेड टाइम, वी हैव 24 आवर्स, और रादर मैं बताता हूँ कि 8 से 12 घंटे ही होते हैं जो वर्क आवर्स होते हैं हमारे। तो उसको हम ट्रेड ऑफ नहीं करना चाहते हैं ना। हमको क्या लगता है कि एक सॉल्यूशन मिल गया बस हो गया। तो सिंपलिसिटी, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा ही सोचते हैं। उसकी वजह से चीजें सिंपल नहीं बनती, क्योंकि नो वन बॉदर्स अबाउट सिंपलिसिटी। तो ट्रेड ऑफ का यहाँ पे ये भी मतलब ले सकते हो कि आपको टाइम ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा, तभी वो सिंपल होगा। आप बोलोगे कि 1 घंटा देने के बजाय चलो मैं 1 घंटा और देता हूँ, बट मैं सिंपल बनाता हूँ, उसका फायदा ये होगा कि नॉट ओनली विल दिस बिकम सिंपल फॉर मी, but for future but for future generations, whoever will use this project or this poster or this artwork or this piece of text, it will become simple, right? तो देखो, मार्केटिंग कोलेटरल हम लिखते हैं, कॉपीराइटिंग करते हैं, मार्केटिंग मटेरियल बनाते हैं, पंच लाइंस लिखते हैं, वन लाइनर स्टोरी लाइन हमारे मार्केटिंग के लिए लिखते हैं ना। उसमें अगर हम टाइम नहीं देंगे, उसको अगर डेलिबरेटली मैं सिंपल नहीं लिखूंगा, उसको डेलिबरेटली पंची नहीं बनाऊंगा, तो कौन आएगा ना हमारा प्रोडक्ट खरीदने? So you cannot do away with simplicity in a lot of things, because simplicity is going to earn you a lot of things in a lot of ways, because it's a very very important value. तो कई बार क्या होता है, हम सिंप्लिसिटी को छोड़ना नहीं चाहते। लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बचाने में लगे रहते हैं लोग। कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि सिस्टम पुराने हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो ये चेंज कर देंगे तो वो चला जाएगा, मशीन सिंपल हो जाएगी तो जॉब चली जाएगी। ऐसा होता था ना, कंप्यूटर्स आने से पहले भी ऐसे ही लगता था लोग, कि लोग कंप्यूटर्स का भी अपोज कर रहे थे। हमको सुना भी होगा, काफी लोगों को पता भी होगा। कंप्यूटर्स के आने पे भी इतना बवाल हुआ था कि जॉब्स चले जाएंगे, जो ट्रेडिशनल फैक्ट्री वर्कफोर्स है उनका जॉब्स चला जाएगा। बट अभी ऐसा हो रहा है कि अभी नॉलेज वर्किंग बन गए वो सारे लोग, नॉलेज वर्कर्स बन गए। अभी लोगों को लगता है कि एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भी हमारी जॉब चले जाएंगे। तो देखो, टेक्नोलॉजी से जॉब चले जाएंगे ऐसा नहीं होता है, आप रीटेक्नोलॉजाइज हो जाएंगे उस चीज को हैंडल करने के लिए। तो सिंप्लिसिटी को अपोज नहीं करना है कभी भी, सिंप्लिसिटी को वेलकम करना है। और कई बार सिंप्लिसिटी को लाने के लिए दूसरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इट कुड बी मनी, इट कुड बी टाइम, इट कुड बी समबडीज वेस्टेड इंटरेस्ट, इट कुड बी अ कोऑपरेशन विद समवन, कि भैया ये तुम्हारा प्रॉब्लम को, तुमको इससे जो मशीन से लगाव है, 2 दिन के सिस्टम से लगाव है, इसको छोड़ो, मैं इसको 2 घंटे का बना के देता हूँ, तो लेकिन तुमको मेरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, तुम्हारा गो हेड लगेगा। तो इस तरह से हम अप्रूवल्स लेके सिंप्लीफाई करते हैं चीजों। तो ये बहुत जगह पे एप्लीकेबल है, थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट विल हेल्प यू। देन यू नीड टू नो फॉर whose sake the simplicity is being designed. One of the key principles, key rules, किसके लिए सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये बहुत सोचना जरूरी है। नहीं तो सिंपल बना दोगे फिर भी सिंपल नहीं होगा वो। देखो, स्टोरीज हैं, आप फिक्शन पढ़ते हैं, कई सारे लोग इसमें रीडर्स हैं, मैं काफी सारे एग्जांपल्स रीडिंग के भी ले लेता हूँ। तो हम रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो कई स्टोरीज ऐसे हैं ना जो आप अपने बच्चों को सुनाना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्या, कि हम एज इट इज नहीं सुना सकते हो बच्चों को क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग एग्जांपल्स लिए हुए हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आएगी। तो फिर भी अगर आपको बच्चों को सुनाना है तो आप क्या करते हैं? सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करते हैं स्टोरी को, राइट? तो कुछ चीजें जो किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया, तो वो आप उसके दोस्तों के टर्म्स में उसको बताएंगे कि तुम्हारे दोस्त ने तुमको कुछ नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से चीजों को आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो किसके लिए बना रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको दिखाना है? बॉस के लिए है, उसकी क्या वैल्यूज है, कंपनी के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हो, अपने लिए सिंप्लीफाई कर रहे हो डेली बेसिस पे टाइम बचाने के लिए, किसी और के लिए देख कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, ताकि उनका काम इजी हो जाए। किसके लिए है डिजाइन, किसके लिए ये एफर्ट है, ये ध्यान में रखोगे, देन यू विल बी एबल टू टेक करेक्ट स्टेप्स। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि सिंप्लीफाई होने के बजाय कॉम्प्लेक्स हो गया प्रोसेस। होता है ना ऐसा, हमारे लिए सिंपल है, 1 क्लिक है, लेकिन वही चीज आपने पेरेंट्स को दिया या
ओल्ड एज को दिया तो उनको नहीं समझ में आते बहुत सारी चीजें, राइट, क्योंकि जनरेशन है। सिमिलरली इन बॉसेस, सिमिलरली इन द फैक्ट्रीज ऑल्सो, कि जो एचआर के लिए इजी है वो सेल्स के लिए डिफिकल्ट है ना। जो सेल्स के लिए इजी है वो कंप्यूटर्स वालों के लिए डिफिकल्ट है, जो कंप्यूटर्स वालों के लिए इजी है वो ग्राफिक्स वालों के लिए डिफिकल्ट है, जो ग्राफिक्स वालों के लिए इजी है वो सेल्स वालों के लिए डिफिकल्ट है। तो हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, तो आप किसके लिए सिंप्लीफाई कर रहे हो वो सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग ए मोर वर्स और complex. And with this, we can end the short and sweet session.